Hi guys, my name is Jatin Gupta and I am a makeup artist. Hey guys, I'm Rohit Gupta and I'm a makeup artist. Hi, I am Pallavi Kanaya. I'm not a makeup artist. I'm a professional makeup artist. Being a makeup artist in life is very interesting because it depends where are you shooting. If I talk about movies, then it's such a long process. You have to get up at 5, have to reach the location at 6 and pack up is around at 6:30 or 7. Or if you're working at a salon, then it's a very chill life. Just come here, sit down on your seat, do some bridal makeups, do whatever you want, relax and go back at 8, whatever it is. So it's like completely easy task. So being a makeup artist, I'm a businessman too. I'm running my 2 different salons. It's not that easy to do the both things together. Misconception basically is the only one thing that if a guy is a makeup artist then he is a gay. जो बहुत सारे लोगों को ये misconception है, but ऐसा कुछ भी नहीं है. सब लोग मीठे या गे नहीं होते जितने भी जो आर्टिस्ट होते हैं. मेरे जैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ अपना काम करते हैं. लड़कियों के साथ काम करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही कैटेगरी में बंदा आएगा. इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि बहुत लोग ऐसे जज करते हैं हमें. कहीं पे भी जाओ, पार्टीज़ में जाओ, तो एक उसी नज़रिए से देखा जाता है कि हाँ, ही इज़ अ गाय आर्टिस्ट, सो ही इज़ रेडी फॉर एवरीथिंग. बट ऐसा कुछ नहीं है. दिस इज़ अ मेन एंड बिग मिसकंसेप्शन विच पीपल हैव. As a salon owner, the thing is कि clients आते हैं, then they usually used to say things कि बाहर इतना सस्ता क्यों है, आपका इतना महंगा क्यों है, मेकअप सेम है, नेम सेम है, then why you are so expensive in makeup? So the thing is कि makeup is not just कि आपने फेस पे पाउडर लगाया है. Products, quality, these are different. The product I am using are basically used by the celebrity makeup artists. They are using in the film industry. Normal salons में कोई use नहीं करता because वो budget में नहीं बैठता. And even the price difference is very minimal. What 200-300 or 500? जो products का पैसा है और कुछ नहीं है. We are artists. We are doing makeups. The products is the best thing जो stay करती है, जो दिखती है, जिससे आपका makeup दिखेगा. If a makeup artist using local products, then आप कितना भी अच्छा मेकअप करा लीजिए, वो अच्छा कभी नहीं दिखेगा. अपने लिए तो मैं यही बोलूँगी, मुझे सबसे बेकार लगता है कि तुम्हें कोई पार्लर वाली आपका पार्लर का और मेकअप आर्टिस्ट बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं. If we talk about money, then the first thing came is investment. हमें इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी करनी होती है on interiors, products, best staff you have to choose, everything best. Then बात आती है रिटर्न की, जिसके लिए आपको क्लाइंट्स बनाने पड़ते हैं, क्लाइंट्स का ट्रस्ट जीतना पड़ता है. एटलीस्ट मान के चलिए 1 year तक, तो देन यू कांट एक्सपेक्ट एनी रिटर्न्स. देन 1 year आफ्टर यू गॉट ट्रस्ट बाय द कस्टमर्स, देन आपको रिटर्न अच्छा मिलता है. मार्जिन्स हैं अच्छे इसमें, नो डाउट, बट यू हैव टू वेट, यू हैव टू बी पेशेंस. Money is quite nice. When I just started my career, I was earning at that time like 1,500. I was charging 1,500 for a makeup, 2,000. I started with 1,500 only. And right now I'm charging for bridal at least 30,000, 40,000. If I'm going outstation, then it might be about 60,000. That's for the salon and bridal. But yes, if you're working in movies, for example, I'm working in movies right now. So it depends on your experience. You can charge like 7,500 per day, 15,000 per day, maximum like 40,000 per day. So it depends on your experience and how much you are giving to your profession. If you are giving your everything, then definitely they'll pay you anything. If your profession is that much and you have that much guts to ask them about your thing, yeah, definitely they'll pay you. ज़्यादा पैसा वैसे ब्राइडल्स करने में है. अगर आप स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में आपको कम अमाउंट पे करते हैं. हार्ड वर्क, द ओनली थिंग हार्ड वर्क. लोगों को लगता है इज अ मेकअप आर्टिस्ट, करना क्या होता है, जस्ट ब्रश पकड़ के ऐसे 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 जो चलाना है, बट नो, पूरी रात मेहनत करनी पड़ती है. अगर आपको एक मेकअप टेक्निक सीखनी है, अगर आप उसे 100 टाइम्स नहीं कंप्लीट करते, देन ट्रस्ट मी, वो आप प्रोफेशनल नहीं, वो क्लियर हाथ नहीं आता कभी. सो पूरी मेहनत के बाद ही हमें कोई जान पाता है हमें मेहनत करनी है. लोगों को पता नहीं होता है कि हमारा मेथड क्या है. बस वो मेकअप के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं. उन्हें ये नहीं पता कि वो कॉन्टोर कर रहे हैं तो वो कहाँ पर करना है, कौन से एरिया में कॉन्टोर करना है, कौन से एरिया में ब्लशर लगाना है. बट बस कर रहे हैं स्टार्ट. तो मेथड जानना ज़रूरी है. अगर उसे नहीं जानोगे आप, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते. बस आप मेकअप करना और मेकअप अच्छा करना, बहुत डिफरेंस है दोनों मेकअप में. ये भी डिफरेंस होता है. अगर आप सेल्फ मेकअप कर रहे हो तो अलग एप्लीकेशन होती है. आप किसी और के ऊपर मेकअप कर रहे हो तो वो एप्लीकेशन करते हैं. Yeah, so many things are because people think यार being nowadays like काफ़ी ज़्यादा misconception है लोगों को कि अगर आप मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर लेते हैं और बहुत easily money making चीज़ है, कुछ नहीं करना, बस प्रोडक्ट खरीदने, मेकअप का कोर्स कर लें, काम कर लें. ऐसा कुछ नहीं होता.
अगर आपने मेकअप का कोर्स कर लिया उसके बाद क्लाइंट्स कहाँ से लोगे जाके? इतना इजी नहीं है मार्केट में निकलना कि हाँ ठीक है मेकअप आता है तो हमें क्लाइंट्स मिल जाएंगे। नो, यू नीड अ स्पेस, यू नीड अ पोर्टफोलियो, यू नीड एवरीथिंग। बिकॉज जब मैंने अपना मेकअप का कोर्स स्टार्ट किया था, आई हैव अ बैकग्राउंड फ्रॉम माई फैमिली ओनली। तभी मेरे को कुछ मिला कि ठीक है मेरे पास बैकग्राउंड है, सो दैट आई कैन मेक क्लाइंट्स, आई कैन डू मेकअप ऑन क्लाइंट्स ओनली। अगर कोई बहुत फ्रेशर बंदा है, उसका बैकग्राउंड नहीं है, वो मेकअप का कोर्स करने के बाद मार्केट में निकल रहा है, उसको क्लाइंट्स नहीं मिल सकते इतने ईजिली। उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है शूट्स कर रहा है, आधे से ज़्यादा शूट्स। लोगों को मिसकंसेप्शन लोगों को है कि हम लोग जितने भी शूट करते हैं हमें सबके लिए पैसे मिलते हैं। हमें पैसे नहीं मिलते हैं, हमारे मैक्सिमम शूट कोलैबोरेशन पे होते हैं। कौन से मतलब हम लोगों की कोई पर्सनल लाइफ नहीं रहती है, फैमिली को हम टाइम नहीं दे सकते, मैं खुद को टाइम नहीं दे सकती हूँ, कुछ टाइम नहीं रहता हम लोगों के पास, कुछ नहीं पता कि मैं कब शूट पर जा रही हूँ, कब वापस आऊँगी। मार्केट में अब बहुत मेकअप आर्टिस्ट हैं, कंपटीशन बहुत टफ है। एक मेकअप आर्टिस्ट अगले एक बैच में 30 मेकअप आर्टिस्ट को ट्रेन कर रहा है। सो फ्यूचर आपका कहाँ है आपको ही पता है, कंपटीटर कितने हैं। सो जस्ट गिव योर बेस्ट, अगर आप बेस्ट देंगे तभी आगे पहुँच पाएंगे, अदरवाइज यू हैव अ लॉट ऑफ कंपटीटर्स इन द मार्केट। आप पहले तो एक अच्छे आर्टिस्ट को फॉलो करो, जिसके अकॉर्डिंग आप चल सकते हो, जिसके मेथड्स आप यूज़ कर सकते हो। और अच्छी लाइन है, बहुत सारा स्कोप है, बहुत अच्छा मनी है, बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है, आपके पास एडवेंचर्स भी हैं, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। वेरिएशंस, इतने सारे कलर्स के साथ गेम खेल सकते हो। जितनों को भी अगर अपना प्रोफेशन स्टार्ट करना है एज अ मेकअप आर्टिस्ट, go with somebody where you can really just get to know about the real techniques. रट्टे वाली चीज़ नहीं है, टेक्निक्स अगर एक बार भी अगर आपको मेकअप के आगे, यू कैन डू एनीथिंग अबाउट द मेकअप। बेस अप्लाई करना सिर्फ ये नहीं होता कि ठीक है फाउंडेशन उठाई फेस पे अप्लाई कर दिया, ये चीज़ें नहीं होती हैं। यू हैव टू नो स्किन टाइप, स्किन कितने तरीके की होती है, उसके ऊपर कितने तरीके के प्रोडक्ट्स लगते हैं, कितने तरीके की फाउंडेशंस होती हैं। एक एक चीज़ अगर आपको पता होगा तभी आप लोग इस चीज़ में जा पाओगे, वरना बहुत मुश्किल है। इसको ईजी वे में बिल्कुल भी मत लेना। आज की डेट में बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, उनको है कि ठीक है नहीं हमें जाके मेकअप का कोर्स करना है, हम लोग मेकअप आर्टिस्ट बन जाएंगे। 3-3 महीने के मेकअप आर्टिस्ट की अकेडमीज बनी हुई है, वहाँ पर जाके सिर्फ घूमने फिर के आगे टाइम वेस्ट कर लोगे और कुछ नहीं होगा। किसी एक अच्छे बंदे के पास जाओ जहाँ से अच्छा सा मेकअप का कोर्स कर सको, अच्छे से सीख सको, वरना पैसे वेस्ट होंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। घर वालों को भी परेशान करोगे, खुद भी परेशान।